My dear friends, few months before, three PIL separately filed in Supreme Court of India by three persons. One, Balaram Singh, the senior BJP leader. The second one, Dr. Subramaniam Swamy, the prominent person of BJP. And the third one, Advocate Ashwani Kumar Upadhyay. All just prayed to Supreme Court to abrogate or just to make out two words from the preamble of Indian Constitution, which was induced in preamble in 42nd Amendment by Congress in the regime of Indira Gandhi. We know the preamble of ours originally only three words given: India is sovereign democratic republic. But after inducement of two words, socialist and secular, two words were induced in preamble after a 42nd Amendment. It's highly objectionable, and they prayed Supreme Court to keep those two words out from the preamble, and they have given their plea. The first plea is the preamble is the basic structure of the Constitution, and it is beyond the capacity, it is beyond the limit of Parliament to amend. Because it is basic structure, it is just soul of Constitution, and that denotes what's the content throughout in the Constitution. So it must not be amended by Parliament. The second plea they have given that in 1976, it was the time of emergency. Emergency was declared. All senior leaders of all the opposition parties were in jail, and without proper debate, proper discussion, and the actual procedure, what's the procedure? The actual procedure was not followed, and those words were just induced in the preamble. It's objectionable, illegal, immoral, unethical. The third plea they have given that the preamble, in fact, actually the preamble originally given only three words, and after due discussion and debate in Constituent Assembly, those two words were not accepted, because the members of the Constituent Assembly were of this opinion that secular word implies we are just going to impose on the citizen of the country, you must be secular and you must be socialist. It is illegal. So B.R. Ambedkar also very strongly opposed the proposal, and so the proposal of keeping the words socialist and secular in preamble were turned down. The third one is the People of Representation Act was also amended in 42nd Amendment, and section 29E was just attached or added, and according to that, every opposition party have to follow this thing.
that they should be secular while they are just giving their manifesto of election. At the same time, when they are campaigning, everywhere the secularism and socialism must be maintained. And so Dr. Subramaniam Swamy just pointed out one thing, that now if we are going to see the preamble of Indian Constitution, then we will find India is sovereign, secular, socialist democratic republic, and the date is given 26 November 1949. So this is misleading, because at the time of when the Indian Constitution was enacted, at that very date, 26 November 1949, only 3 words were given, and now it just appears that the Indian Constitution given by the Constituent Assembly by all the members by the consensus, those 5 words were given. It is highly misleading and misinformation to the people in general of the country. So I have to say here, the Supreme Court after all just recently commented on that we are throughout secular and socialist. In many judgments have given in the light of that. So why not you just maintain your you don't like to maintain the secularism? तो यहाँ पर मुझे कहना है कि in written you are declaring that one should be secular, one should be socialist. 1950 में एक अमेंडमेंट किया गया कांग्रेस के द्वारा, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1950 में एक आर्टिकल उन्होंने डाला बाई अमेंडमेंट, and by that very article 25 that legalize the conversion को जो है सो लीगल स्टेटस दे करके क्या किया गया, किसका कन्वर्सन ज़्यादा हुआ, हिंदू ज़्यादा कन्वर्ट हुए। फिर 28th आर्टिकल के द्वारा 1950 में ही डिवार किया गया कि धार्मिक शिक्षा जो है सो हिंदुओं के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। और फिर आर्टिकल 30 के द्वारा कहा गया कि अन्य धर्म के लोग जो है सो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो क्या यहाँ पर सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म मीन्स द गवर्नमेंट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, the government will just maintain the impartial position. It will not be never in favor of anyone or never against anyone. It will be impartial. इसके किसी भी कार्य से यह नहीं लगना चाहिए कि सरकार किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में है। सरकार का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई इसका अपना धर्म नहीं होगा। लेकिन 1950 में जो ये 3 अमेंडमेंट किए जाते हैं, फिर 1951 में जो है सो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट आ रहा है। उसके द्वारा आप सारे मंदिर को अपने कमांड में ले लेते हैं और उससे जो भी पैसा आता है उसको मनमाने ढंग से आप खर्च करते हैं, माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट में आप खर्च करते हैं। 1956 में आप जो है सो हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को आप टच नहीं करते हैं। एक ही देश में 2 कानून बनाया जाता है, एक को पर्सनल उसका पर्सनल लॉ से आप अलाउ करते हैं और दूसरे के लिए आप नियम बनाते हैं कि ऐसे चलना है। तो क्या गवर्नमेंट के इस एक्ट में इन सारी बातों को भी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था कि कांग्रेस जो अभी सेकुलरिज्म की बात कर रही है, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रिम्बुल में सेकुलरिज्म को जो डाला गया, तो क्या इसके पहले कांग्रेस के द्वारा जो ये सब कानून अमेंडमेंट किए गए वो तो अगेंस्ट हिंदू है और इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन है।
तो उसको मोरल राइट नहीं बनता है कि ये जो है सो वर्ड डाले जाएं, क्योंकि डीड में क्या है, आप जो है सो इन वर्ड्स कुछ हैं, इन डीड कुछ हैं। इस बात को समझने के लिए देश की जनता में लिटरेसी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था, नहीं तो सरकार कुछ नहीं बोलती है, अपोजिशन कुछ नहीं बोलता है, मीडिया नहीं बोलती है, तो पब्लिक के तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए थी, जो 75 साल में नहीं उठी। उसके बाद जब आप सेकुलरिज्म डाल देते हैं, सोशलिज्म को प्रिम्बुल में डाल देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? 1991 में आप क्या करते हैं? 1992 में क्या लेकर के आते हैं? 1995 में क्या लेकर के आते हैं? आप जो है सो माइनॉरिटी कमीशन बनाते हैं। माइनॉरिटी कमीशन बना करके जितना भी गवर्नमेंट का योजना होता है उसका लाभ किसको मिलता है? माइनॉरिटी को मिलता है। फिर आप 1995 में वक्फ बोर्ड बनाते हैं, सरकार बनाती है। वक्फ बोर्ड जो है सो पूरा का पूरा अगेंस्ट हिंदू है। आप कानून बनाते हैं कि कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता है, आपको सीधे उस ट्राइब्यूनल में जाना होगा, 10 साल चक्कर लगाना होगा, फिर आप किसी भी प्रॉपर्टी को आज क्लेम कर रही है। तीसरा पोजीशन है जो है सो उसका रक्षा, रेलवे के बाद थर्ड पोजीशन पर वक्फ बोर्ड खड़ा है, और कहीं कहीं क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, गांव मेरा है, और उसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 1995 के बाद? तो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को प्रिम्बुल में डालने के बाद कांग्रेस ने जो उसका डीड है, जो उसकी करनी है, इस पर जो है सो पब्लिक के तरफ से 75 साल में, 70 साल में, 25 साल में, 20 साल में आवाज़ क्यों नहीं उठा? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं था। लोग जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट हो रहा है। उसके बाद राम सेतु पर आप एफिडेविट दे रहे हैं, और लास्ट में जो है सो हिंदू को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। तो कांग्रेस का जो चरित्र है उसको हम देखते हैं, ठीक है, इसको करना यही है, उसके पॉलिसी में है कि भाई पैलेकेट एंड अपीज वन पर्टिकुलर वोट बैंक एंड डिवाइड अदर ऑन सम इशू, and the total vote bank of this and something from due to divisions, if some votes are coming then I will win the election। ठीक है, उसका पॉलिसी है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग में यू शुड बी इंटेलेक्चुअल एनफ टू रिजेक्ट दैट। लेकिन रिजेक्ट भी नहीं करते हैं आप, जो है सो फिर 2004 के बाद जो है आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं, हिंदू आतंकवादी होता है। तो ये जो स्थिति है, इस सारी बातों की भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए थी, क्योंकि ओनली वर्ड्स से जो है सो क्या उससे ये होता है, क्लियर होता है, शब्दों में कुछ और व्यवहार में, बात में, और एग्जैक्ट जो करनी होती है, जो स्टेप्स लिए जाते हैं, उसका निरीक्षण हम नहीं कर पा रहे थे। और जो हमारे तरफ से, जनता के तरफ से जो आवाज़ उठनी चाहिए थी, सारे लोग अगर चुप हो गए, कश्मीर से 5 लाख हिंदू को जो है विस्थापित किया गया, उसके साथ जो ये टेरर किया गया, उसके लिए कितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कितनी विपक्ष की और पक्ष की और सरकार आवाज़ उठा रही है, जनता कितना आवाज़ उठा रही है, ये सब क्या है? वी आर इंटेलेक्चुअली, सोशली, पॉलिटिकली बैंकरप्ट। तो इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इन सारे बिंदुओं को पर ध्यान आकृष्ट किया जाता तो एक इंसाइट पैदा होता। वैसे तो एब्रोगेट होने वाले सब एक्ट थे जिनको 10 ईयर्स में एब्रोगेट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ। आगे की उम्मीद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इन सारी बिंदुओं पर मुखर होकर के सरकार से डिमांड करें और इसका एक मोमेंटम तैयार करें, क्योंकि सफ़र करते रहने से बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाएंगे। और इसी के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।